Good morning, dear students. Welcome back to my channel Simplified Maths. Dear students, today we are continuing with in this particular lecture. I am continuing with chapter 10 vectors or a vector algebra, and probably today is the last lecture of this chapter. Okay, right? We have completed up to exercise 10.4. Discussion is done. Now there is one exercise 10.5 left and then miscellaneous exercise which is very simple. All exercises are very simple in this. Ultimately actually this chapter is so simple, okay, because so many things we have studied in the what we say physics, right? That is why. Now here just one small theory topic left, and which is a coplanar vector, okay, right? Three vectors are given and coplanarity of three vectors, okay, like that. Hmm? For the three vectors, now very important result it is, or there is a theorem actually. Theorem is there in the textbook. If you see, it is given as a theorem, but we will not go for the proof that for three vectors, or say three vectors A, B and C are coplanar. Okay, coplanar. What do you mean by coplanar? Coplanar means they are on the lies in the same plane. सपोज ये हमारा फुल स्केप है, उसको आप प्लेन कंसिडर कर लो. तो ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आई हैव टू ड्रॉ हियर ओनली, एक दो तीन. ठीक है, राइट? नाउ सी when there is one wooden stand on which I have kept my mobile, but that one, that is a different plane, that is not the same plane, that's a different plane. ओके, राइट? जहाँ पे मोबाइल पड़ा हुआ है वो दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है. सो मतलब कि मोबाइल वाला जो प्लेन है उसमें कोई वेक्टर ड्रॉ करे और यहाँ पे कोई ड्रॉ करो तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा. अगर यहीं पे ड्रॉ करो तो वो कोप्लेनर हो जाएगा. सो थ्री वेक्टर्स A, B and C are coplanar. They say if and only if, like that. If and only if means double implies. Okay, double implies means the converse is also true. Whenever the converse is also true, we used to put a double implies sign. Okay, so three vectors A, B and C are coplanar, and that means the condition is given is that their box product A dot B cross C is equal to 0. इनका बॉक्स प्रोडक्ट मतलब इन अनदर नोटेशन यू कैन टेक बॉक्स ए बी सी is equal to 0. Means, what do you mean by double implies? Double implies means it is necessary and sufficient condition. Sufficient condition. ठीक है, नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है. मतलब बोथ द वे यू कैन स्पीक द स्टेटमेंट that if the three vectors are coplanar, then the box product is 0, and conversely, if the box product of three vectors is 0, then these three vectors are coplanar. अगर ये 0 नहीं होता है तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाता है. नॉन कोप्लेनर मीन्स दे आर नॉट लाइंग ऑन द सेम प्लेन. So this was the small theory topic left. Okay, and now we will go for exercise 10.5. It is so simple exercise. I will do only 2 or 3 maximum sums from this, and that's it. We'll have a completion of the chapter. Okay, now see. Suppose I take the sum number 2. Prove that there are three vectors given A, B and C in the form of I, J and K, and prove that these three vectors are coplanar. The given thing is like that. Okay, prove that these three vectors are coplanar, right? तो यहाँ पे वॉट एवर द गिवन वेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको क्या करो, राइट इन द ट्रिपलेट फॉर्म, दैट विल बी ईजियर. So first vector A is given is I minus 2j
plus 3k, and if you write their components, it will be 1 minus 2 3. Then vector b is given is minus 2i plus 3j and minus 4k. Okay, so that components are minus 2, 3, minus 4, and the third vector given is c. In the form of I, j and k, it is I minus 3j, okay, plus 5k, or that will be equal to what? 1 minus 3, 5. ठीक है, ये वेक्टर्स हमको गिवन है, राइट? These are given. Now we have to show or we have to prove that these vectors are coplanar. ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसका करेंगे बॉक्स प्रोडक्ट. बॉक्स प्रोडक्ट A, B, C. What is the box product? Either you take A dot B cross C or you can take a determinant. याद है ना? डिटर्मिनेंट में ये तीनों वेक्टर्स हमको लिखने, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. सो इट इज़ 1 minus 2 3, then minus 2 3 minus 4 and 1 minus 3 5. ठीक है, अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करो, ज़ीरो आ गया तो बात खत्म. ठीक है, राइट? तो 1 इंटू इट विल बी, नाउ डिटर्मिनेंट है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, 15 minus 12, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन बीच में माइनस रहेगा, राइट? देन माइनस माइनस 2, सो प्लस 2 इंटू इट इज़ minus 10 एंड प्लस 4 हो जाएगा. देन लास्ट टर्म इज प्लस 3 इंटू 6 minus 3. ओके, तो देखिए क्या होता है सिंप्लीफिकेशन. ये हो गया 3, देन दिस इज minus 6 2 ज़ा minus 12 और 6 minus 3 3 ज़ा 9. सो देखो 9 plus 3 12, 12 minus 12 0 हो गया. And if you get the answer 0, that means that the result is proved, that A, B and C are coplanar. ठीक है, they are coplanar, right? So हो गया ये. So see, all sums are of the same type. Actually मैं और sum में नहीं करूँ तो भी चलेगा, but I will give you one more type which is little bit different than the usual coplanarity. Okay, in the third sum I am not doing it. Third sum में the three vectors are given coplanar and you have to find out the lambda. Okay, so given coplanar means take the determinant equal to 0 और उसमें वो lambda जो unknown होगा वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा. ठीक है, I will do the fifth sum. In the fifth sum you are given 4 points. Okay, means position vectors of the 4 points are given and we have to show that all the 4 points are coplanar. ठीक है, right? Now the given points with the position vectors are, यहाँ पे vectors दिए लेकिन vectors corresponding to the 4 points, position vectors. Okay, corresponding to the 4 points. Okay, 4 points are, तो I just give them name, they have not given the name. हम उसको A, B, C, D नाम दे देते हैं. A, so see the first one is 4I plus 8J plus 12K. ओके, ये फर्स्ट वाला है तो उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दे, तो 4 8 12.
4, 8, 12. ठीक है. Then second one is B. Okay, so it is 2i plus 4j plus 6k. ठीक है. So 2i plus 4j plus 6k, so that is 246. Right. Then C, और third point. तो उसको अभी मैं डायरेक्टली कॉम्पोनेंट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, आई जे के वाला नहीं लिख रहा हूँ. 3i plus 5j plus 4k, so it is 3, 5, 4. And last one D. तो उसको भी मैं कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो 5, 8, 5. जस्ट यू हैव टू सी इन द टेक्स्ट बुक. 5, 8, 5. ठीक है. ओके. तो ये 4 पॉइंट दिए एंड यू हैव टू प्रूव दैट दिस 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर. अब थोड़ा ध्यान से देखो दोस्तों, अगर ये 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐसे ही रफली प्लॉट कर दिए, ठीक है, ऐसे. आई डोंट नो वेयर आर द पॉइंट्स, बट मैंने 4 पॉइंट्स, ओके, ए बी सी डी, सपोज ये मैंने किया ए बी सी डी. ओके. अभी आप ध्यान से देखो कि अगर मैं वेक्टर ए बी ज्वाइन कर दूँ, फिर वेक्टर ए सी ज्वाइन करूँ, उसके बाद मैं वेक्टर ए डी ज्वाइन करूँ, तो क्या होने वाला है, यू नो, all these 3 vectors A, B, AC and AD will be in the same plane if the 4 points are coplanar. If the 4 points are coplanar, then vector AB, vector AC and vector AD will be or lies in the same plane. मतलब वो कोप्लेनर हो जाएंगे. ठीक है. ये हमारा फुल स्केप जो है वो समझो कि ये एक प्लेन है, तो चारों पॉइंट अगर यही प्लेन में है तो तीनों वेक्टर्स जो ड्रॉ किए वो भी इसी प्लेन में आएंगे. बाय मिस्टेक भी अगर ये 4 में से कोई एक भी पॉइंट अगर कोई दूसरे प्लेन में होता, मतलब ये फुल स्केप में नहीं पर कहीं और जहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है, अगर मैं वहाँ पे जो वो 4th पॉइंट रखता तो उसको और ये पॉइंट ए को ज्वाइन करता तो वो दूसरे प्लेन में चला जाता. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट. यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर. ठीक है. सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए बी ए सी ए डी फाइंड करेंगे और उसका बॉक्स प्रोडक्ट करेंगे. सो ए बी वेक्टर, तो ए बी मतलब यू नो ए बी मीन्स बी माइनस ए. तो बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 4, 4 माइनस 8, 12 माइनस 6. ठीक है. राइट. तो वो जो भी आंसर आता है -2, -4 एंड 6. राइट. उसके बाद ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर इज सी माइनस ए. ठीक है. सी माइनस ए, सी माइनस ए विल बी 3 माइनस 4, 5 माइनस 8 एंड 4 माइनस 12. ओके. तो 3 minus 4 is -1, 5 minus 8 is -3 and 4 minus 12 is -8. ये दूसरा ऐसी वेक्टर हो गया. एंड ए डी वेक्टर, ए डी वेक्टर विल बी डी माइनस ए. तो 5 minus 4 and 8 minus 8 and the last is 5 minus 12. 5 minus 12. ठीक है. राइट. तो वो हो गया हमारा 1, 0 एंड -7. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट कर दो. ए बी ए सी ए डी, टेक अ बॉक्स प्रोडक्ट. तो बॉक्स प्रोडक्ट इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट में ये वेक्टर्स रख दो, -2, -4, 6, -1, -3, -8. ठीक है. एंड 1, 0, -7.
अभी इसका आंसर आप करोगे ना दोस्तों तो वो ज़ीरो आएगा। अभी मैं वो नहीं शो कर रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना। क्या आएगा आंसर इसका? ज़ीरो आएगा। ठीक है, राइट। तो इफ़ यू गेट द आंसर ज़ीरो, इसका मतलब ये हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन इसका ये होगा कि देयरफॉर द वेक्टर्स ए बी, ए सी एंड ए डी वेक्टर्स आर कोप्लेनर। These vectors are coplanar vectors। ठीक है, तो अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो फिर वो 4 पॉइंट ए बी सी डी भी कोप्लेनर हो गए ना। ओके, सो इनडायरेक्टली हमने ये भी प्रूव कर दिया, देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर पॉइंट्स। ठीक है, प्रूव। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू ऑल द सम्स डियर चिल्ड्रन। ठीक है, अभी मैं और कोई सम्स इसमें ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो आप लोग क्या करोगे होमवर्क में, व्हाट वी विल डू, आप एक्सरसाइज 10.5 भी कंप्लीट करोगे एंड एक्सरसाइज 10 पूरा फुल। ठीक है, ये पूरा आपके लिए होमवर्क में है। इससे पहले भी हमने आपको एक्सरसाइज में जितने भी सम्स बाकी है ना वो सब आपको ट्राई करने। आई हैव गिवन यू द आइडिया डियर चिल्ड्रन। ओके, एंड नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज, आई विल बी नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी डूइंग अ प्रोबेबिलिटी, मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद हम वो 11th और 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या ले लेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बिकॉज द चैप्टर इज सो सिंपल। उसमें से आधे से ज़्यादा पोर्शन इस बार कैंसल हो गया है, तो चैप्टर एकदम सिंपल हो गया है। दैट इज़ द रीज़न दैट आई वांट टू टेक इट। तो वो फटाफट हो जाएगा। ओके, दैट इज़ द रीज़न। गॉट दिस? सो डियर चिल्ड्रन, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।